हाँ जी बेटे, आगे आर्टिकल लिख लो पुत्र। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ अ जीपी। ठीक है, मतलब ਆਪਾਂ ਹਾਲੇ ਜੀਪੀ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮ ਦਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ 1 + 1/2 1/4 ਹੈ ਨਾ, ਜੀਪੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੀਓ ਹਾਫ ਦੀ 1/8 1/16। ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਂਡਲੈਸਲੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਸਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਪੁੱਛੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਵੀ ਆਵੇ, ਪਹਿਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਮ ਕੱਢ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮ ਦਾ, ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਓ ਕੋਈ ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖ ਦਿਓ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ। ਸੋ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਸੋ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਐਨ ਅਪਰੋਚਿਸ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੁੱਤਰ ਉਹ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢ ਕੇ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਜੀਪੀ ਦਾ ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n-1 ਅਪੋਨ r-1। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਦਾ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ a upon 1 minus r. Sum of infinite terms of a GP is a upon 1 minus r. ठीक है, मतलब a फर्स्ट टर्म है जीपी ਦੀ, r ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਡਰਾਈਵ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਮੈਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਰੱਖ ਦੂੰਗਾ, ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ठीक है, इन्फिनिटी ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, मतलब ਸਮ ਇਸ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਜਾਏਗਾ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਸਮ ਤਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਬੇਟੇ ਜਦ r ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ। ਸੋ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ 1 -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ ਹਾਫ ਲਈ ਸੀ 1/2, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 1 -1 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 0.1 ਲੈ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੱਛੇ ਪਾਵਰ n ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪਾਵਰ n ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮਸ, n ਟਾਈਮਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, a ਦੀ ਪਾਵਰ n ਮਤਲਬ a ਇੰਟੂ a ਇੰਟੂ a। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੰਬਰ ਫਾਈਨਲੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਘਟ ਰਿਹਾ। 0.1 ਇੰਟੂ 0.1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ, 0.01। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਗਰ ਹੋਰ ਇਹ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 0.001। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਵਧਾਈ ਜਾਊਂਗਾ, ਨੰਬਰ ਮੇਰਾ ਕੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਘਟ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਇਫ ਆਈ ਕੀਪ ਡੂਇੰਗ ਦੈਟ, ਆ 000 ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੇਟੇ, ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂਵਰਡ 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੇਂਜ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਿਨਿਟ ਬਾਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਨੰਬਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਘਟਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਘਟਦਾ ਘਟਦਾ 0 ਵੱਲ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ देयरफॉर ਵੀ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ r ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦੀ ਪਾਵਰ n ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਦਿਸ ਨੰਬਰ ਵਿਲ ਬੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂਵਰਡ 0, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਮਤਲਬ ਉਹ 0 ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ ਸਮ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਐਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਂ ਸੌਟ ਆਫ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੱਖਤੀ, ਤਾਂ r ਅਗਰ 1 -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਗਏ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆंसर 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। तो सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स कितना आ जाएगा, a इंटू -1 अपॉन r -1। अब -1 नीचे एडजस्ट करा दो बेटे, या नीचे -1 कॉमन कर लो, सम आ गया a अपॉन 1 -r। सो आ थोड़ी डेरिवेशन होगी। ठीक है, तो इस करके ख्याल रखना है, डेरिवेशन पूछनी नहीं किसी ने, बट यू शुड नो कि वाई भी आ कंडीशन क्यों लगी 1 -1 ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਆਂਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ
ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ 1 - 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਸ਼ੋ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ ਕਿ ਇਫ ਰੇਸ਼ੋ ਇਜ਼ ਲਾइंग ਆਊਟਸਾइड ਦਿਸ, ਠੀਕ ਹੈ, then sum will not exist, then sum does not exist, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ 2 ਲੈ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਆ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ 1, ਅਗਲੀ ਟਰਮ 2, ਹਾਂਜੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ 2 ਲਈ ਹੈ 4, ਫਿਰ 8 16। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਦਾ ਸਮ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਟਰਮ ਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟਰਮ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 1 + 2, ਫਿਰ 4 ਐਡ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ 8 16, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਰਹੋਗੇ ਸਮ ਵੱਧਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜੀਪੀ ਦਾ ਸਮ ਕਦ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰੇਗਾ ਪੁੱਤਰ, ਅਗਰ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਐਂਡ ਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ a/1 - r। ਹੁਣ ਵੰਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡਰਾਈਵਡ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆ ਦੇਖਿਓ ਸਮ ਮੇਕ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸੇ 1/4, ਠੀਕ ਹੈ, प्लस 1/16, 1/64, if I say कि up to infinite sum कैलकुलेट करो, just one example, ठीक है। ए कर लिया, कॉमन रेशियो कर लो, कितनी है बेटे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, so therefore sum is a/1 - r, so that is equal to 1/4 upon 3/4, that is 1/3, ठीक है। सो आ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਨ ਟਰਮ ਦਾ ਕੱਢੀਏ, ਉਹ ਚੈਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਜ਼ ਲੌਂਗ ਐਜ਼ ਸਾਡੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ 1 ਔਰ -1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਮ ਸਾਡਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਜਨਰਲੀ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਿਓ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਦੇਣੀ ਆ, ਆ ਸਮ 1/3 ਕੱਢਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਫॉर एग्जांपल ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲੀ ਐਵੇਂ ਜਸਟ ਫॉर ਫਨ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਲੈਂਥ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ 1 ਹੈ, ठीक है। अच्छा एवें करते हैं, इनू हाफ कर दें, मतलब what I'm trying to do, I'm trying to make you visualize this using geometry, ठीक है। अच्छा ऐदा ही फिर मैं कीता की कीता, आ 1 ਸੀਗਾ पूरी लेंथ, इनू अदद करता बिल्कुल ऐदा। अच्छा फिर छोटू स्क्वायर देखते हैं, आ वाला, इनू भी ऐदा ही ना, इनू भी ऐदा कट देंगे, इनू भी अदद करता, ठीक है। मतलब पहला आ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਵੰਡਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੁਅਲੀ, फिर आ लिया, इनू इक्वली वंडता, फिर आ छोट मतलब ऊपर वाले ले जाना, फिर इनू वंड दी इक्वली, ठीक है। और फिर आ लिया, इनू इक्वली वंड, ये चीज़ मतलब चली जाओगी ना, मतलब मैं तो इदा छोटा छोटा गां गां करी जाऊँगी, चलता रहेगा। लेट अस सी वन थिंग, आ लेंथ कितनी है पुत्र 1, और फिर आ कितनी होएगी 1/2, ठीक है। देयरफॉर दिस लेंथ विल बी 1/2, ठीक है। और इदा आ भी 1/2 होएगी आ वाले दी। अच्छा इत्थे आ जाओ, हुण आ 1/2 सी बेटे, आ भी 1/2 है, ठीक है। आ भी लेंथ 1/2, यू अंडरस्टैंड, मैं आर ते मार्कर आ 1/2 ते आ 1/2, तो आ 1/2 है तो आ उदा अद्ध है, तो इत्थों लैके इत्थों तक कितनी होएगी, दिस इज लाइक इत्थों लैके इत्थे तक, आ इत्थों इत्थे तक, सो आ इधरों लैके इत्थे तक कितनी होएगी, हाफ दा हाफ, 1/2 इंटू 1/2 1/4, तो आ लेंथ होएगी 1/4, आ भी लेंथ होएगी 1/4, ठीक है। समझ आ रही गल, ओके। well basically I'm coming to this series। अच्छा आ दस्यो हुण जरा, आ कितनी सी, आ हाफ सी, ठीक है, सॉरी आ हाफ सी, आ 1/4 है, तो आ भी 1/4 है, इत्थों लैके तक 1/4 है, तो आ फिर उदा अद्ध है, इत्थों लैके तक टुट दा अद्ध है, तो 1/4 का हाफ कितना हो गया 1/8, तो आ भी 1/8 हो गया, तो इदा ही आ भी 1/8 हो गया, इदा चलता रहा, इदा चलता रहेगा। अच्छा हुण ना मैं एक एरिया शेड कराने, ठीक है, तुसीं मैनूं दस्सिओ, जिवें आ एक एरिया मैं आ शेड किया, आ वाला स्क्वायर, आ वाला स्क्वायर, इदा ही मैं आ शेड करी गया।
सोच के देखो, जस्ट लुक एट द डायग्राम, फॉरगेट अबाउट द सीरीज। कैन यू सी, आ देखो आ भी जिद्दां दा जिन्ना एरिया आया उन्ना ही आया उन्ना ही आया। सो बेसिकली आ जिहड़ा एरिया आ एदा 1/3 हो गया। ਇਹਦੀ ਐਸ डायग्राम ਤੇ आ जाओ, बिल्कुल जिन्ना आ उन्ना ही आ उन्ना ही आ। सो आ वाला एरिया ਐਸ रीजन ਦਾ 1/3 हो गया। ਇਹਦੀ ਐਸ ਪਾर्ट ਤੇ आ जाओ, ਆ वाला ਜਿਹੜਾ एरिया है ये भी ਐਸ रीजन ਦਾ 1/3 हो गया। सो ये चलता रहेगा। सो कहना ही से जिहड़ा वायलट कलर का रीजन है ये टोटल एरिया का 1/3 है। दिस एरिया इज 1/3 ऑफ द टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, 1 इंटू 1 1, ਉਹਦਾ 1/3 होएगा। ठीक है, देयरफॉर दिस शुड बी 1/3। आड़ा डायग्राम ये तो मतलब आप जिस पर कॉमन सेंस कढ़े हुण आ एरिया कढ़ लो। आ एरिया कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ, हाफ इंटू हाफ, हाँ जी 1/4 प्लस आ एरिया कितना है 1/4 इंटू 1/4 1/16 1/64। अगे चलदा 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 गां गां करते रहांगे। सो दिस रीजन द सम ऑफ दिस रीजन इज 1/3। सो जस्ट अगेन मैं पहला कि जस्ट फॉर फन ये आप किया, कोई सवाल नहीं है। ठीक है, मतलब सीरीज ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है यू कैन ऑलवेज थिंक इन टर्म्स स्क्वायर्स रेक्टेंगल्स ज्योमेट्री ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ कैन लिंक। बट ਆਪਾਂ ਹੁਣ रियलिटी ਚ ਆ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ क्वेश्चन ਤੇ आइए। ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, कहना जी सम कड्डो इनफाइनाइट टर्म्स का। पहला तो ए है 1। ठीक है, ठीक है, और रेशो कितनी है, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दैट इज -1/3 एंड दैट इज लाइंग बिटवीन 1 एंड -1। सो सम एग्जिस्ट करेगा बिल्कुल, तो सम आ जाएगा थोड़े को ए अपॉन 1 माइनस आर 1 अपॉन 1 माइनस। ठीक है, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू 4/3 ऊपर 3 आ। ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब मैं पहला भी दस चुकिया कि जिदा जिदा तुसी इनफाइनाइट मतलब है जिमें जिमें तुसी आ सीरीज जिन्नियां ज़्यादा टर्म्स लोगे ਇਹਦਾ आंसर उन्ना 3/4 ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ मतलब है। ठीक है, द मोर जिमें तुम स्क्वेयर वाली गल नहीं देखी, जिन्ने ज़्यादा स्क्वेयर लोगे ਉਹਦਾ एरिया उन्ना 3 ਵੱਲ जाएगा, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ 1/3 ਵੱਲ जाएगा। सो ਇਹਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ द मोर द टर्म यू टेक द आंसर ऑफ दिस सम विल अप्रोच टू दिस नंबर मोर एंड मोर। ठीक है, आ मतलब ਹੁੰਦਾ। बट क्वेश्चन करना तो या जो मैं कह रहा है ये बस ज्ञान ही है, फिर मतलब ये तो सिर्फ समझाने है। ठीक है, अच्छा हुण सीरीज वाल वेखो पहला। अगेन ए पी च भी जी पी च भी अजे किया 1/3 1/3 1/3 वाली अलग कर लो, अब 5 वाली अलग कर लो, अब 5 की पावर 6 है। ठीक है, सो की करिए सीरीज सैपरेट कर लो, प्लस है ना। सो 1/3 प्लस 1/3 क्यूब 1/3 की पावर 5 अप टू इनफिनिट। ठीक है, एंड 1/5 स्क्वायर 1/5 4। ठीक है, 1/5 की पावर 6 अप टू इनफिनिट। ठीक है, सो हुण ये नहीं सोचना सर इनफिनिटी दी इदा तो इनफिनिटी/2 होंदा है। ठीक है, सो दैट इज इनफाइनाइट। बेसिक मैथ में समझाया सी कि सो हुण अगेन ਇਹਦਾ सम ए पता है, रेशो कितनी है बेटे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म दैट इज इक्वल टू 1/3 स्क्वायर। ए है, सो सम हो जाएगा ए अपॉन 1 माइनस आर दैट इज 1/9। ऐसे ही ਇਹਦਾ आ जाएगा ए अपॉन ए कितना है 1/25 अपॉन 1 माइनस आर, रेशो कितनी है अगेन 1/25। ठीक है, एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई कर लो, लेट अस डू मोर प्रॉब्लम। ठीक है, आंसर आ जाएगा। कहता प्रूव दिस प्रोडक्ट। ऐसा नज़र आ रहा है कि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। सो कितना आ गया 9 की पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, हुण असीं आ वेख्या उपर ये सीरीज़ केड़ी है 1/3 1/3 स्क्वायर है ना, जीपी आ गई ना 1/3 क्यूब। और कॉमन रेशियो कितनी बेटे, सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सो दैट कम्स आउट टू बी 1/3। ठीक है, सो देयरफॉर ਇਹਦਾ सम आ जाऊगा एस सीरीज का आ वाला सम, चलो दैट इज ए अपॉन 1 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 1/3 बाय 2/3 दैट इज 1/2। ठीक है, सो आ जी सम है पुत्र आ वाला ए 1/2 आ गया और ए 9 की पावर है, therefore that is 9 raised to power 1/2 and root 9 is 3। ठीक है,
ओके, कहता जी सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ इनफिनाइट जीपी। ठीक है, चलो हैगी तो जीपी है तो की ला लीजिए, लेट द जीपी बी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब अप टू हाउ मच इनफिनाइट टर्म्स। Sum of the first two terms, so a plus ar is 15। अगेन दो रिलेशन ਦਿੱਤੇ होने ਉਹਨੇ a ਤੇ r ਚ, ਉੱਥੋਂ a ਤੇ r ਆ ਜਾਏ, ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਯੂ ਕੈਨ ਇਮੇਜਿਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ ਥਰਡ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਕੋਈ ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਐਂਡ ਦ ਈਚ ਟਰਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਦੀ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਟਰਮਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਚੱਕ ਲਓ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ nth ਕਰਕੇ, nth ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਕੋਈ, ਉਹ ਟਰਮ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਹੈ ਗਾਹਾਂ, ਬਟ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਈਚ ਟਰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਲਓ ਜੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦੀ ਟਰਮਸ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਟ। ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਚੱਕ ਲਓ, therefore this should be equal to sum of all the terms following it. This should be equal to what? AR plus AR square plus AR cube up to so on। ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਚੱਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਆ ਲੈਂਦੇ ਅੱਗੇ, this is equal to ਗਾ ਦਾ ਸਮ r ਸਕੁਆਇਰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਾਈਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਹੀ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਰਮ ਚੱਕੋ that is equal to ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਸਮ ਕੱਟ ਕੇ ਆਹੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ each term is equal to sum of the following। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆ ਦੂਜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਸਮ ਕੱਢ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਜੀਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮ ਤੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ, तो ਇਹਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਸਟ ਟਰਮ a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो इज r। सो नॉन जीरो टर्म है, कटिया गया, सो देयरफॉर 1 माइनस r इक्वल टू r, 2r इक्वल टू 1, r इक्वल टू 1/2। सो कॉमन रेशियो 1/2 आ गई बेटे, दूजा ਇਹਦੇ ਚ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1/2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ। सो a plus a/2 is equal to 15, so 3a/2 equal to 15। ठीक है, सो a आ गया 10। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਤਰ a ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੇਸ਼ੋ ਆ ਗਈ, ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਕੁਛ ਪੁੱਛ, ਸੀਰੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਸਮ ਆਫ ਦੀ ਫਸਟ 20 ਟਰਮ ਪੁੱਛ ਲੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਸਟ ਟਰਮ ਆ ਗਈ ਹੈ 10, ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਫ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਫ ਹਾਫ ਕਰੀ ਜਾਓ, 5, 5/2, 5/4 ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਗੇਨ ਜੀਪੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਦੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਯਾਰ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ x ਗਿਵਨ ਹੈ और अब y गिवन है, इत्थे आ z गिवन है, अब प्रूव करना है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੀ ਓਵਰਆਲ, ਦੈਟ ਮਸਟ ਲਾਈ ਬਿਟਵੀਨ 1 ਐਂਡ -1, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਨਾਓ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕਾਮਨ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1/r। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਬਾय फर्स्ट टर्म, और ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ, -b/r/b, दैट इज -1/r। और थर्ड की कॉमन रेशो कितनी है नजर आ रही, 1/r²। तिना की कॉमन रेशो कर ली, सम कर लीए, x इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशो दैट इज इक्वल टू 1/r। ठीक है, वो कॉमन रेशो। सो इदां y इज इक्वल टू आ नंबर फर्स्ट टर्म a मतलब वो पहली टर्म अपॉन 1 माइनस द कॉमन रेशो दैट इज दिस, दैट इज +1/r। और z इज इक्वल टू, हाँ जी, यदि फर्स्ट टर्म a अपॉन 1 माइनस 1/r²। ठीक है, ये तुसी x y z कर लिया, और प्रूव की करना, x इंटू वाई बाय z आप की करिए लैफ्ट हैंड साइड ला ली। ठीक है ना, थोड़ा सिंपलीफाई कर लो। हाँ जी, कितना आ गया, चलो पहला आप जिधर नूं जाना उधर नूं आ जाइए, x इंटू वाई बाय z वाला आना। ठीक है, सो नाउ x इंटू वाई बाय z इज x इंटू वाई। ठीक है, हाँ जी, कितना आया, a ऊपर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई हो गया, नीचे डिनोमिनेटर ना डिनोमिनेटर, सो a माइनस बी ए प्लस बी, a² माइनस b²। ठीक है, मल्टीप्लाई करते ना, नीचे न्यूमिनेटर ना न्यूमिनेटर हो गया, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, सो दैट इज इक्वल टू a, और इतने z की वैल्यू फिल करनी, z कितना बेटे c बाय दिस, समझ आएगा बेटे, x इंटू वाई आ गया, z कितना है c डिवाइड बाय आ नंबर 1 माइनस 1/r², वो बेटे ये नाल कटेगा तो कितना आ गया ab/c। दैट्स इट। सो ये क्वेश्चन समझते रादर बहुत आसान होंगे,
ठीक है। और गाहाँ +2 ਤੁਹਾਡੇ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਵੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਚਾਰजेस ਪਏ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸਮ ਦਾ a/1 - r, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਕਰ ਲਓ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿ ਜਸਟ ਸੋਲਵ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਮ ਲੱਭੋ ਜਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭੋ, ਫਾਈਂਡ x। ਓਕੇ, ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਿਸ, 1 plus mod cos x ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ x ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ mod x ਸਕੁਆਇਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੱਲਾ ਸਕੁਆਇਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ mod, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਪਲੱਸ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਈਵਨ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ mod, ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਪ ਟੂ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ, ਬਾਅਦ ਚ 8 ਕਰ ਲਾਂਗੇ। तो कितना है जीपी है, कॉमन रेशो कितनी है, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करो, कॉमन रेशो आ गई mod ऑफ cos x, फर्स्ट टर्म कितनी है 1, तो इधर सम आ गया a/1 माइनस r mod ऑफ cos x। सो इधर सम आ गया, ठीक है। और a कहते 8 की पावर, इधर की है 4 क्यूब। चलो हुण इहनूं सॉल्व करते हैं। एक चीज़ ख्याल रखो पुत्र, जब भी दोनों पासे कोई इदा पावर्स हो ना, तो जो हुण इहदे च आ कि बेस सेम हो गया, अगर आ वाला बेस सेम हो गया तो पावर बराबर कर देंगे, तो बेस तो सेम करो। यह भी 2 की पावर है तो आ भी 2 की पावर है, तो इनू लिख लो 8 हो गया 2⁻³ इनटू की है आ वाला नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 कितना है 2 का स्क्वायर इनटू 3 है। सो बेस सेम है तो मतलब पावर भी सेम होएगी। सो देयरफॉर 3/1 माइनस mod cos x इक्वल टू 2 इंटू 3 आ कटिया गया, ठीक है बेटे। सो हम की करो, इन लिए सॉल्व करना है, उधर ले जाओ, 2 नीचे ले आओ। सो 1/2 इज इक्वल टू और mod ऑफ cos x इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 1/2। देयरफॉर दो तरीके ना कर सकते हो, या तो खोल दो प्लस ते माइनस, सो तुसी वैल्यूज कर लो, ठीक है। मैं जनरल सॉल्व कर देना, या स्क्वेयरिंग कर दो, देयरफॉर cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2 द स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि mod द स्क्वायर ते x स्क्वायर सेम होंगे। सो आओ स्क्वायर वाला फॉर्मूला ला दो, सिर्फ cos स्क्वायर x इज इक्वल टू, हाँ जी, कि वैल्यू हाफ होंगी बेटे 60 की, π/3 का स्क्वायर। आ तुसी ट्रिग्नोमेट्री पढ़िया तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/3। सो जो उन्हें पूछी सी एदी रेंज दसो, तो एन की वैल्यू पुट कर लो, वो वाले एंगल लभ लो जो उस रेंज चाहिए, गल खत्म, ठीक है। सो कितने भी जीपी इनफाइनाइट हो तो सीधा फॉर्मूला, और ये वरत्या जाता है, यूज होता है काफ़ी, ठीक है। ये सारे में ना पुराने जिन्हें भी जेई के क्वेश्चन ये रिलेटेड आए हैं, मैं वो लै रहा नाल। अच्छा, आ कहता जी एक्स फाई एंगल है 0 to 90, ਜਿਹਦਾ मतलब पता क्यों दिंदा 0 to 90 च होएगा तो वैल्यू जी है पॉजिटिव ली है उन्हें, पहले अकॉर्डिंग सारे पॉजिटिव होंगे। कहता एक्स आ जी वाई आ तो जैड आया, रिलेशन लभना है, ठीक है। समेशन में कि स्टार्टिंग कितों करनी चाहिए है, पहला उन्होंने एक्सपैंड करो, एक्स इक्वल टू एन की वैल्यू 0, पावर है पुत्र की लिखा है cos ऑफ फाई की पावर 2n, एवं लिखा है n इक्वल टू 0 to इनफिनिटी। तो पहला n की वैल्यू 0, समथिंग रेज पर 0 1 आ जाएगा, प्लस n की वैल्यू 1 पुट करांगे, तो 1 पुट करांगे आ गया cos स्क्वायर फाई, n की वैल्यू 2 cos की पावर 4 फाई अप टू इनफाइनाइट। और नज़र आ रहा है जीपीए, कॉमन रेशो कितनी है cos स्क्वायर फाई, तो इधर सम कितना आ गया a/1 माइनस cos स्क्वायर फाई। व्हाट इज 1 माइनस cos स्क्वायर फाई, sin स्क्वायर फाई, therefore this is equal to 1 by sin स्क्वायर फाई। ये बेटे थोड़े को x आ गया, ठीक है बेटे। इतने y कर लेने, इतने भी नाल लिख लिए, ठीक है। सो x कितना आ गया 1 by sin स्क्वायर फाई, ठीक है। कल समझाइए, पहला सीरीज एक्सपैंड कर ली, फॉर्मूला लाता, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन रेशियो पता है, a/1 माइनस r, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज sin स्क्वायर थीटा। ओके, व्हाट इज y, y च साइन है तो कितना होएगा, पहला n की वैल्यू 0, समथिंग रेस्ट पर 0 1, फिर n की वैल्यू 1 दैट इज sin स्क्वायर फाई, ठीक है, फिर sin की पावर 4 फाई,
ठीक है। अब इनफाइनाइट ए का सम आया 1/1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव इज हाँ जी वट कॉस स्क्वायर फाइव, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर फाइव। ठीक है, चलो आ हो गया। मैं रब करदा, ठीक है। हुण मैं z लभना की है। ओके, लेट अस कैलकुलेट z। इनू एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। z कितना है अगेन समथिंग रेज पावर 0 1 प्लस cos स्क्वायर फाइव साइन स्क्वायर फाइव cos 4 फाइव साइन 4 फाइव, ठीक है। अप टू इन्फिनाइट अगेन ए भी जीपी है, रेशो कितनी है डिवाइड करो cos स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव, सो z की वैल्यू आ गई a अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर फाइव इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अच्छा ਹੁਣ ऑप्शन मैच कराने हैं। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ एक्स वाई जेड च, ठीक है। रिलेशन चाहिए कि एक्स वाई ते जेड च। अच्छा क्योंकि तीनों ऑप्शन देखो ना एक्स वाई जेड आ रहे हैं तो ठीक है, मतलब अब फाइव नहीं चाहिए तो आई गेस बड़ी सिंपल आ कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू पता है। कॉस स्क्वायर फाइव की वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर फाइव इज 1/y एंड साइन स्क्वायर फाइव इज 1/x। तो आ वाली वैल्यू इतने पुट कर दो, सो 1/1 माइनस दिस इज 1/y इंटू 1/x और आप फिर एलसीएम उलसीएम ले लो तो ऑप्शन मैच कर देगा। और इनू होर समझेगा ना बेटा, तो सिंपल हो गया। इतने एलसीएम ले लो, कितना आ गया, ऊपर आ जाएगा एक्स वाई, नीचे आएगा एक्स वाई माइनस वन इज इक्वल टू वट जेड, मल्टीप्लाई कर लो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई जेड माइनस जेड, therefore एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जेड प्लस एक्स वाई। अच्छा ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਚ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾ, ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੇਸ਼ਨ x ਤੇ y ਚ ਇਕੱਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ cos ਸਕੁਆਇਰ 5 ਪਲੱਸ sin ਸਕੁਆਇਰ 5 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1, ਤੇ ਆ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 1/x ਪਲੱਸ 1/y is 1, ਕੱਲਾ ਅਗਰ x ਔਰ y ਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੇ that also works, ठीक है। बट उन्हें सिंगल चॉइस पूछा तो यह आंसर आ गया थोड़ा, ठीक है। सो अगे कहना जी इफ x इज पॉजिटिव सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ सीरीज, तो ठीक है। पहला देखो ना, वैसे चलो कॉमन आ रहा है 1 प्लस एक्स आ रहे हैं जो कॉमन ले लो, 1/1 प्लस एक्स कॉमन की बचा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ऊपर भी स्क्वायर है क्यूब से खिंचा गया आ तुहाडे को माइनस अगे सीरीज आ गई, सो एदा सम कितना होएगा ए आ गया, रेशो कितनी है सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, सो देयरफॉर रेशो इज -1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ठीक है। फिर इन्ना मल्टीप्लाई करोगे फिर प्लस वाली टर्म आ जाएगी, तो गल खत्म, सम काट लो, देयरफॉर सम इज आगे पे आइए, सम इज ए अपॉन विच इज 1 अपॉन 1 माइनस आर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। हाँ जी एलसीएम ले लिए पुत्र, कितना आ गया इतने आ जाऊगा और आ वाला नंबर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। सो 1 प्लस एक्स अपॉन हाँ जी 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, सो क्योंकि मल्टीप्लाई है बेटे नाल ते आ कटिया गया, एक्स ना एक्स कटिया गया, दैट इज 1/2, ठीक है। सो सम जिहड़ा है हाफ आ जाऊगा इनफाइनाइट जीपी सीरीज का, ठीक है। अभी जेई का पुराना सवाल कहता जी कंसिडर एन इनफाइनाइट जीपी विद फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन रेशो आर, ठीक है। तो जीपी होगी ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एंड सो ऑन, और क्योंकि इनफाइनाइट है तो देयरफॉर आर जिहड़ा दैट मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1, ठीक है। कहते हैं द सम ऑफ द सीरीज इज 4, सो सम का फॉर्मूला क्या है ए अपॉन 1 माइनस आर इज 4, एक रिलेशन आ गया, वो तो ऑलरेडी दस दो रिलेशन के बनाने, सो ए इज इक्वल टू 4 माइनस 4 आर, ठीक है। सो वी हैव दिस रिलेशन, ठीक है पुत्र। फिर सेकेंड टर्म देती है उन्हें 3/4, सो देयरफॉर ए आर इक्वल टू 3/4, दूजा रिलेशन देता। सारे को दो रिलेशन है, दो इक्वेशन है तो दो वेरीएबल है, सॉल्व कर लो, इतों वैल्यू चक के पा दो जी चाहते हो, तो ए तो आर चाहिए, या तो पुट चैक करा दो, देखो ये भी होंगे ना आर तो पुट करा लो कि सैटिस्फाई करता, जिमें कि दो ए तो आर का प्रोडक्ट 3/4 है, ठीक है। जिमें आ देखो ना ए इंटू आर, सो आ तो 3/4 नहीं है, हाँ जी एदा
ठीक है, दैट इज़ 3/4 आ भी हो सकता है, दैट इज़ आ भी हो सकता है, ਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ a, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਦ ਹੈ ਜੇ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 2 ਪੁੱਟ ਕਰੋ, r ਦੀ 3/8, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੱਕੋ। ਠੀਕ ਹੈ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 3/4a, ਸੋ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤੇ ਪੁੱਟ ਚੈੱਕ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ 4 ਟਾਈਮ 3/4a, ਇੱਥੋਂ ਆ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਓ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ a² प्लस 3a, सॉरी -4a प्लस 3। ठीक है, -4a प्लस 3 इक्वल टू 0, therefore a इज इक्वल टू इधर 1 और 3। तो a की वैल्यू अगर 1 पुट कर दो तो r कितना आ गया 3/4। सो व्हेन a इज 1 r इज 3/4, जिहड़ा कि ऑप्शन नहीं है। एंड व्हेन a इज 3, इत्थे a 3 पुट कर दो तो r इज 3/4। तो 3 एंड सॉरी इत्थे a की वैल्यू 3 पुट कर दो तो r इज 1/4। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझे गल? वैसे पुट चेक बेटर है। कहते जी S1 S2 S3 आर दी सम ऑफ इनफाइनाइट जीपीज, सारे इनफाइनाइट जीपी सम है हुज फर्स्ट टर्म्स आ रहा। अच्छा, पहलियां टर्म दी हैं 1, फिर दूजी दी 2 है, तीजी दी 3 है, एंड फिर लैम्डा करके है। ठीक है, और कॉमन रेशो की है 1/2 पहली थी, फिर 1/3, 1/4। अच्छा, एक ज़्यादा है 1/3 और नीचे 1/λ + 1। ठीक है, ठीक है भाई, सम कर लो। S1 सीरीज है, यदि पहली टर्म पता है, कॉमन रेशो पता है। S2 है एक सीरीज, उसका सम कैलकुलेट करना है। S3 सीरीज A ते R देता है ना बेटे, तो ठीक है, सम कर लो। सो S1 कितना होएगा, S1 होएगा A/1 - R, सो दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, 2। ठीक है, नीचे आ गया 1 तो ऊपर 2। S2 कितना होएगा, S2 लिए A आया तो R आया, A/1 - 1/3, so that is 2/2/3, that is 3। ठीक है, एंड S3 कितना हो गया 3/1 - 1/4, that is 3/3/4, that is 4। सो फाइन, S1 आ गया 2, S2 आ गया 3, S3 आ गया 4, एंड लास्ट थोड़े को आ जाएगा S लैम्डा आ जाएगा लैम्डा + 1। ठीक है, एक ज़्यादा आ, तो ये तो सम्स कढ़ लै। हुण कहंदा फाइंड दी वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, उन्होंने गां ऐड करवाना, तो कोई गल नहीं, इन्होंने ऐड करवाना। देयरफॉर आ वैल्यू पुट कर दो, दिस ऐड कर दी, सो देयरफॉर आ जाएगा 2 + 3 + 4, लास्ट कितना आएगा लैम्डा + 1। आई गेस इट्स अ प्री सिंपल AP। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, एक तो लैके लैम्डा तक, सो नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2, AP का फॉर्मूला फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, लैम्डा +1 + 2 लैम्डा +3। ठीक है, थोड़ा सम आ गया। ठीक है, तो अच्छा, अभी पुराना जेई का प्रॉब्लम है, लेट्स सी की कहता है। कहता जी एक इनफाइनाइट जीपी है, वो पहली टर्म x है एंड सम 5 है, देन x बिलोंग्स टू। ठीक है, चलो देखते हैं। पहली टर्म x है, सम 5 है, तो कॉमन रेशो r मान लो। ठीक है, अगर कॉमन रेशो r मानते हो और सानू पता है कॉमन रेशो हमेशा 1 और -1 चलाई करनी चाहिए, क्योंकि इंटरवल आ रहा है ना, पूछ रहा रेंज पूछिए तो मतलब वरत्या जाएगा। ठीक है, सो सम कितना आ जाएगा A/1 - R के बराबर है 5 के बराबर। हुण रेंज कि चाहिए x की, तो कोई गल नहीं, इतों R कढ़ लो, R की रेंज आ गई, R की रेंज पता तो x की आ जाएगी। ठीक है, सो देयरफॉर की करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इज इक्वल टू 5 - 5R। ठीक है, देयरफॉर 5R इज इक्वल टू 5 - x। समझा रही गल, 5R इक्वल टू 5 - x, देयरफॉर R इज इक्वल टू 5 - x/5। आ तुहानू रिलेशन पता लग गया एदे तो। और अगे सानू पता है, बेटे मैं रब कर रहा, ठीक है, और अगे सानू पता है कि R है पुत्र हमेशा 1 और -1 दे विच लाइक करना चाहिए, नहीं तो सामने ही निकलेगा। देयरफॉर दिस नंबर दैट इज इक्वल टू दिस, इत्थे रखो,
सो 5 upon 5 minus x by 5 must lie between 1 and -1 क्योंकि इथों रेंज चाहिए है। ठीक है, 5 ना मल्टीप्लाई कर दो, सो पॉजिटिव नंबर है। 5 माइनस कर दो, -5 -10 माइनस एक्स एंड 0 माइनस ना मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव नंबर ना साइन चेंज करेगा, 10 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 0, सो x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 10। ठीक है, x इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 10। ठीक है, सो ने वो बिल्कुल बेस चेक कर लिया क्योंकि इन जनरल इमेच्योर जिथे तैयारी न्याणे करते या सही तरीके नाल नहीं उत्थे ही होंदा है कि बस फॉर्मूला रट लिया a/1 माइनस r पता ही नहीं कद लाना है। ठीक है, सो कंडीशन है कि दैट रेशियो मस्ट लाई बिटवीन 1 एंड -1। ठीक है बेटे, आई होप तुहानू आह सम ऑफ इनफिनाइट जीपी का फॉर्मूला दे नाल दे प्रॉब्लम समझ आ गए होने। ठीक है, बाकी फिर नैक्सट क्लास करते हैं।